Hello students and good morning to all of you, and this is Brijesh Singh and I am going to discuss with you the income tax law and practices unit 5, and this is the last session of that particular subject for that particular unit. The topic is rebate and relief in assessment of total income. तो rebate and relief क्या होती है अंडर सेक्शन 87A, section 86, section 89 and all that thing are comes under the relief and rebate. तो share, first thing is a share of member of an association of a person, yeah, BOI, BOD of individual, or in the income of the association of person. It comes under the section 86. Second thing, rebate. Rebate comes under section 87A and relief is under section 89. Okay, the objective of that particular session is rebate and relief. To understand the relief and rebate and how to used in the Income Tax Act and what is the provisions of regarding the income rebate and relief in Income Tax Act and in 1961. Then first thing is relief and rebate. अगर हम बात करें in the respect of income tax क्या होता है, तो in addition to the provision of the aggregate discussion, I will and section 866 that laid down that in computing the total income of the NSSE, so there shall be included certain items of income on which no income tax is payable. Under chapter 7, accordingly the provision of section 86 without B would be applicable. ठीक है, तो जो उसमें आ चुके हैं उनके अलावा जो भी बचते हैं वो यहाँ पर आती है. Shares of member of an association or person or the body of individual or in the income of association or body of सेक्शन 86 में ये आता है कि जो भी मेंबर ऑफ एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनको हम कहते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के जो मेंबर्स हैं उनके जो शेयर्स हैं उनके बारे में सेक्शन 86 में रिबेट की बात कही गई है. तो सेक्शन 86 प्रोवाइड दैट नो इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द एसएससी हु इज द मेंबर ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, कोई भी जो इनकम टैक्स जो है वो पेएबल नहीं होता है जो कि मेंबर ऑफ एसोसिएशन हो या बीओआई हो. लेकिन कब? जब अदर देन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द Society Act 1860 and under any law corresponding to that act is force in any part of India in respect of its shares in the income of such association or body of computation in the manner provided section 67A of that act. Further, where the association or body is chargeable to tax at the maximum marginal rate or any higher rate under any of the provision of this act, the share of the member and that can be computed as aforesaid shall not be included in his income. तो जो भी वो रेट उसको हम लेंगे उसकी इनकम में वो चार्जेबल नहीं होगा. और प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट ये कहता है अंडर सेक्शन 86 मेंबर ऑफ कंप्यूटर एज aforesaid shall not be included, ठीक है, इन हिज टोटल इनकम. तो जो मार्जिनल रेट ऑफ हायर रेट अंडर द प्रोविजन की बात हो रही है. हाउएवर एनी इन अदर केस की अगर हम बात करें, द शेयर ऑफ मेंबर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम. And it is also provided that where no income tax is chargeable on the total income of the association या body, the share of member computed as aforesaid shall be chargeable to tax as a part of his total income. Nothing contained in section shall apply to this case. ठीक है, कोई भी जो टर्म है वो यहाँ नहीं है. दूसरा क्या है, वो है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स को ये बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन सेक्शन 87A में ये जाता है. क्या होता है? सेक्शन 87A प्रोवाइड रिबेट ऑफ इनकम टैक्स टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. ठीक है, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होती है उनको ये रिबेट मिलती है. अमाउंट ऑफ रिबेट इज 12,500 और 100% ऑफ इनकम टैक्स विच एवर इज लेस. ठीक है, जिसकी इनकम कम होगी या जो भी 100% है. अगर किसी की 12,000 आपका आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे केवल आपका 12,000 ही टैक्स आ रहा है, 500 रुपये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 12,000 का आपको मिल जाएगा. अगर आपका 13,500 आएगा तो 12,500 की फिर आपका जो है, इसका मतलब है कि आपका जो टैक्स है वो इनकम है 5 लाख से ऊपर है. ठीक है, तो इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग हेल्थ और एजुकेशन सेस. हेल्थ और एजुकेशन सेस से पहले ही आपको इसको कैलकुलेट करना होता है, उसको डिडक्ट करना होता है. तो इट इज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2019. तो ये ध्यान रखना है आपको. देन रीफ व्हेन सैलरी इज पेड इन एरियर और इन एडवांस. सेक्शन 89 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो एडवांस या एरियर में आपको मिलती है तो वहां सेक्शन 89 आपका आता है. और सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग इसमें क्या असर होता है?
तो जब भी सेक्शन 89 की हम बात करते हैं, दैट प्रोवाइड द रिलीफ टू एन इंडिविजुअल हु रिसीव एनी पोर्शन ऑफ हिज सैलरी इन एरियर्स और इन एडवांस और रिसीव प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी व्यक्ति को सैलरी अगर एरियर में, एडवांस में या किसी प्रॉफिट इन ल्यू में अगर उसको कोई भी रिसीविंग होती है उस पर्टिकुलर ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो वो जो है डिडक्ट रिलीफ जो है आपको अंडर सेक्शन 89 का वहाँ लागू होता है, आप ले सकते हैं। तो एसएससी में अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर हु इज बीन एम्पावर्ड टू ग्रांट रिलीफ इन अप्रोप्रिएट केसेस इन द अकॉर्डेंस विद द रूल्स 21 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग। इसमें कहा गया है कि कोई भी एसएससी अपने असेसिंग ऑफिसर को ये कह सकता है कि उसको इसके अंदर में उसको रिलीफ दी जाए। हाउएवर नो सच रिलीफ शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट received or receivable by an SSC on his voluntary retirement or the termination of his services। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की जो रिलीफ है वो एसएससी को वॉलंटरी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पर नहीं मिलती है। विद एनी स्कीम और स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर company referred in sub clause 1 clause 10C and section 10 and a scheme voluntary operation if any exemption in respect of any amount received or receivable on such voluntary retirement or termination of its services or voluntary separation has been claimed by the SSC under the clause 10C of section 10 in respect of such or any other assessment year अगर हम बात करें तो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर केवल आपको एरियर की बात होती है। इसके अलावा क्या क्या आपको रिलीफ हो सकते हैं? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग केसेस। कब कब मिलती है? इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी रिसीव इन एडवांस और एरियर, तब आपको अंडर सेक्शन 89 की रिलीफ मिल सकती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एरियर ऑफ फैमिली पेंशन है तो आपको रिलीफ मिलेगी, यहाँ 15,000 तक की रिलीफ मिलती है अगर फैमिली पेंशन में आपको कुछ पैसा मिलता है। रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी में आपको मिलेगा, आपके रिटायरमेंट में ग्रेचुटी मिलेगी। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंपनसेशन अगर आपको मिलता है टर्मिनेशन का तो आपको रिलीफ मिल सकता है। या रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पर्सन, कम्यूटेशन पेंशन आपको मिलती है तो वहां पर भी आपको इसका रिलीफ मिलेगा। रेस्पेक्ट ऑफ अदर पेमेंट्स, जो भी अन्य पेमेंट इस टाइप से आते हैं उनको आपको मिल सकता है। सच रिलीफ शैल बी कंप्यूटेड एज पर रूल 21A एंड 21AA इन द मैनर गिवन बिलो। सबसे पहले आपने करना क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द tax liability of the previous year in which the arrear or advance of salary has been received including the amount of such arrear। ठीक है, जो भी एरियर और एडवांस आपको मिला है उसको जोड़ते हुए जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको कैलकुलेट करना है। सेकंड आपने क्या करना है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर और एडवांस हैज बीन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सच एरियर। फिर इस एरियर को हटाने के बाद जो आपकी कैलकुलेशन आती है, टैक्स लायबिलिटी आती है, उसको कैलकुलेट करना। 2 स्टेप हो गई। देन टैक्स एट स्टेप नंबर 1 माइनस द टैक्स एट स्टेप नंबर 2। तीसरी स्टेप में आपने करना क्या है, स्टेप 1 को से स्टेप 2 के टैक्स लायबिलिटी को माइनस कर देना है। द टैक्स ऑन सच एरियर और एडवांस, तो आपको पता चल जाएगा कि उस एडवांस और एरियर पे कितना टैक्स आपका बन रहा है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। फोर्थ थिंग, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच द एरियर और एडवांस related including such arrear or advance। अब क्या करना है, tax liability of the previous year to which the arrear or advance related to including such arrear or advance। जो previous year से related का arrear आपको मिला है या advances मिले हैं उनकी tax liability आपको calculate करनी है। फिर compute the tax liability of previous year to which arrear or advances related एक्सक्लूडिंग सच एरियर और एडवांसेस। फिर इनको एरियर और एडवांसेस को एक्सक्लूड करते हुए आपको टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन 6 स्टेज में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 माइनस द टैक्स एट स्टेप नंबर 5। ठीक है, जो टैक्स एट नंबर 4 पे आपको मिला है, ठीक है, उसको नंबर 5 जो है उसमें से माइनस करना है। तो टैक्स सेल ऑन अदर एरियर और एडवांसेस इन द ईयर टू विच द एरियर और एडवांस रिलेटेड, फिर वो टैक्स निकल कर आ जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड। Then step 7 tax at step number 3 minus the tax at step number 6। फिर जो टैक्स है स्टेप नंबर 3 का उसमें से स्टेप नंबर 6 के टैक्स को आपको घटा देना है। द रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) इज कम आउट। फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इफ देयर इज नो एक्सेस नो रिलीफ इज एडमिसिबल। इफ देयर इज नो एक्सेस, अगर कोई भी एक्सेस नहीं है, लाइक -3 नंबर पे आपका 10,000 आता है और 6 नंबर पे आपका 9,000 10,000 आता है, कोई एक्सेस नहीं है तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे
12,000 आता है, यहाँ पे 10,000 आता है, तो आपको 2,000 का रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द अंडर सेक्शन 89 एंड रूल्स 21A 21AA इन द मैनर गिवन बिलो। तो ये आपको ध्यान देना है, इस टाइप की जो एरियर्स है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। So this is a suggested readings and references which I took the notes and studies and I discussed with you. So Taxman's early tax digest and references, Dr. Binod K. Singhania and Kapil Sharma, Grish Ahuja, Dr. Ravi Gupta, Direct Tax Law and Practices. ठीक है, या विनोद से के सिंघानिया, डायरेक्ट टैक्स एंड रेडी रॉकस्टार टैक्समैन, इस टाइप की जो चीजें हैं, अलग अलग बुक्स हैं, या incometaxindia.gov.in पेज कम्युनिकेशन और सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो भी है, इनके अकॉर्डिंगली हमने बहुत सारी जो डेटा है आपके साथ शेयर किया है। तो दिस इज द रेफरेंसेस। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द इनकम टैक्स practices and laws and practices, and if you have any queries then ask me and call me. Thank you very much all the students.